हिंदुस्तान, जिसे बड़े संघर्ष और कुर्बानियां देने के बाद 200 साल की गुलामी से आजादी तो मिली, लेकिन अफसोस मुल्क का बंटवारा हो गया। मजहब के नाम पर इंसानियत की हत्या हो रही थी। मोहल्ले दियां गलियां खून खून हो जानियां। होएगा तो ही जरम जाएगा। पंगा लेना है? इरादा तो नहीं है, पर इतराज भी नहीं है। दोस्तों, जब एक सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट कुलदीप नायर ने इंडो पाक बॉर्डर कमीशन के हेड साइरिल रेडक्लिफ से इंडो पाक बॉर्डर पे बात करी, तो रेडक्लिफ ने एक चौंकाने वाला बयान दिया, और वो ये कि मैंने आपको लगभग लाहौर दे ही दिया था। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के पहले सबको पता था कि लाहौर भारत को मिलने वाला है, क्योंकि 1941 के सेंसस के हिसाब से लाहौर में हिंदू और सिख की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 40% थी, पर प्रॉपर्टी और इकोनॉमी में उनकी ओनरशिप 80% तक थी। लाहौर बंटवारे के पहले डाइवर्सिटी का प्रतीक हुआ करता था, और ये शहर मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारों से भरा रहता था। पर सवाल यह है कि फिर लाहौर पाकिस्तान में गया कैसे? रेडक्लिफ ने एक अजीब सा जवाब देते हुए कुलदीप नायर को कहा कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं था। कोलकाता तो मैंने इंडिया को दे ही दिया था, तो सोचा लाहौर पाकिस्तान को दे दूं। अब आप खुद सोचिए कि लाखों लोगों की जिंदगियां बदल देने वाले इस डिसीजन के पीछे इतना इमेच्योर रीजन कैसे हो सकता है? इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुसलमान सी गुलाम रसूल उदा नाम सी, उसने एक लड़की की डिमांड की थी, और असी सारे लोगों को इथों हटा देंगे। 10 साल तो लैके 40 साल की तक ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਬੜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ आवाज मारी, सब तो पहला अपनी बेटी नो, मान बेटा आ जा। मेरी बहन ने अपनी गुत्तियां की थी, और मेरे पिताजी ने बड़े गुस्से नाल दुपट्टा नहीं किया, और मोरी कृपान और सिर परे उन्होंने सारे ने कटना शुरू किया। खट 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 दी आवाज आन सी। मैं यकीन जान के जाना 60 साल मैंने आज दी याद है, किसी ने हाई नहीं की थी, बस वाहिगुरू की आवाज आती रही है। Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So I had a bit of a comment back, so it's like a big, I don't want to make it an argument, but somebody said, look, I've heard your answer on Khalistan and the landlocked argument doesn't make much sense.
Over half of Europe is landlocked, along with many other nations. In an era of underground pipelines, aviation, and technology, access to sea is not required for a sovereign nation's economy. Yeah, you know, I do agree with that. On a theory, that's true. Yeah, but the reality is that India, if we took India off Punjab, let's say we took Khalistan or whatever you want to, how big you want to make Khalistan, Punjab or Haryana, Himachal Pradesh. If we took that off India, okay, firstly, Punjab is an economy worth 80 billion. So we'd have to have a pretty strong argument to take that off them. Yeah. But even if we did, let's say we got Khalistan, right? And you said you wanted to have the landlocked nation. Well, on both sides you would have a potential enemy. Pakistan doesn't really have massive cordial relations with the Sikh people. Look at what happened in 1947. And at the same time, India. Now we've antagonized this country by taking off and breaking the integrity of India, of Mother India as for most Indians. Both of those powers are nuclear armed. So do we really want to be in between two nuclear armed nations that aren't particularly friendly to us? And where is this pipeline going to come from? It's going to come towards Punjab. It's going to go through one of those two nations. That's a massive risk, a geopolitical risk that we'd be taking there, of our dependence on that pipeline from outside. Aviation would have to fly over the airspace of India and Pakistan. Again, very, very dodgy. Yeah. Technology. Yep, technology is good. You know, there's out there, but most technology now works with fiber and with fiber cables, right? So optical cables would have to come through either Pakistan or India, or you know, and then again, it's a risk there of somebody disrupting our technology by just cutting that cable. So personally, for me, the real biggest argument for Sikhs looking to establish a homeland, we think the homeland should be as big. I think the homeland should be the whole of India, because of two main reasons. Firstly, our Takht. You know, we've got our Takht Hazur Sahib and Takht Patna Sahib, and both of those are not in Punjab. So what we're going to do with those? You know, if we took India, if we took Khalistan out of India, then they would say, look, get rid of your Takhts. Yeah, and we don't want that. That's our Guru's Takht. So we need freedom to roam the whole of India, because you know Guru Sahib has walked all over that place. So as far as I'm concerned, you know, look at Guru Nanak Dev Ji's footsteps, and they represent that every one of those places they visited, we should have freedom to go and visit. The other thing is the nuclear weapons argument. Look, today's world is ruled by the nuclear weapon. Okay, the 5 nations that are on the UN Security Council, they're only on there because they have nuclear weapons. So this is the biggest shastra of this age, is nuclear weapons. And how can the Khalsa not have that? You know, if anything, the Khalsa should be the only people that have it, because no one else has the kind of Gurmat example of using it, of have Sarbat Tapala at their heart. So if the weapon exists, the Khalsa should have that weapon. And if you don't, you're nobody. So Khalistan needs to have nuclear weapons, right? Otherwise, anybody will come along and try to wipe you off. Now, where is Punjab going to develop nuclear weapons from? With 2 nuclear enemies, you know, we'll be stopped from doing so. Yeah, look at what's happening with Korea and Iran right now. How many restrictions people are placing because they don't want the proliferation of nuclear weapons. So therefore, actually, it makes more sense to take over India, democratically, of course. Take over India. It's already got nuclear weapons. Then they come into the hands of the Khalsa, and that would help world peace, because the Khalsa is the only people that are really interested in Sarbat Tapala. Everybody else holds their own interest at heart. So that's my view. I mean, for me, it's just as realistic to take over India as it is to take over Khalistan, because both of them seem almost impossible right now. But for me, the why taking over India is more important is because the Khalsa needs to spread. Guru Gobind Singh Ji's hukam is that we need 960 million Khalsa in the world. So therefore, the only way that's going to happen is for us to expand outside of Punjab, from outside of Punjabi community. So what's wrong with us looking at India, which is already full of people that believe in reincarnation, already full of people that believe in Sants and Mahapurukhs, already full of people that believe that this is Kaljug. Yeah, in Kaljug, Kirtan is Pradhana. So let's teach people Kirtan. Let's teach them that Guru Granth Sahib Ji Maharaj is full of Kirtan, and that Guru Nanak Dev Ji is the solution to Kaljug. You know, Kal Taran Guru Nanak Aya. Bhai Gurdas Ji believes it, and for me, why don't we believe it? Why don't we see that Guru Nanak Dev Ji is the answer, and just tell people that? Now, we don't have to say, look, they have to convert. We don't believe in conversion. But I believe the truth of Sikhi is so beautiful, people will follow it if we were to spread it properly. And we've never really tried so far. So let's try and see what happens. And it's a peaceful way of spreading as well. It's a peaceful way of getting out of what we're in right now. So let's try. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.
आखिर बांग्लादेश के प्रोटेस्ट में चुन चुनकर हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है और उनके मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है? राफा तो फिर भी हमारे देश से 4000 किलोमीटर दूर था, पर बांग्लादेश तो हमारे पड़ोसी ही है। तब क्यों इन बॉलीवुड के चमचों का मुंह बंद है? लगता है अब कोई नहीं बोलेगा ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदू। प्रोटेस्ट हिंदू और बाकी माइनॉरिटीज को टारगेट क्यों कर रहा है? क्योंकि जो इनका रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट था वो तो सरकार और कोर्ट ने पूरा कर दिया। प्रोटेस्ट को दबाने के लिए शेख हसीना ने आर्मी को ओपन फायर करने के लिए बोला था, पर आर्मी ने इससे साफ इनकार कर दिया। शेख हसीना को भागकर इंडिया आना पड़ा। बढ़ते तनाव के कारण भारत में रिफ्यूजीज क्राइसिस भी हो सकता है, जिसमें अराउंड 1 करोड़ से भी ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू भाग के भारत आ सकते हैं। दोस्तों, कार्नेज इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। तो चलिए मैप्स के थ्रू समझते हैं कि कैसे इस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का डिवीजन होगा। देखिए, इस डिवीजन के लिए सबसे पहले तो पाकिस्तानी न्यूक्लियर आर्सेनल को न्यूट्रलाइज करना होगा, जिसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो पाएगा। नॉर्थ में ऑब्वियसली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके इंडिया में वापस मर्ज होगा और पश्तून डोमिनेटेड खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान में मर्ज हो सकता है। वहीं बलूचिस्तान में ऑलरेडी फ्रीडम मूवमेंट चल रही है एंड अगर ईरान कुछ कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना करे तो बलूचिस्तान एक रिसोर्स रिच इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकता है, जिसकी कैपिटल ग्वादर या फिर क्वेटा हो सकती है। साथ ही सिंध प्रोविंस, जहां हाईएस्ट नंबर ऑफ माइनॉरिटीज रिजाइड करती हैं, सिंध के यूनिक कल्चर के साथ सिंधु देश नाम का एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकता है, जिसकी कैपिटल कराची या फिर हैदराबाद हो सकती है। लास्ट में बचता है पाकिस्तानी पंजाब, जो ट्रू सेंस में आज के पाकिस्तान का सिंधी समुदाय इंडिया में शरणार्थी यानी कि रेफ्यूजी बनकर आया था। आज सिंधी लगभग हर क्षेत्र में आगे हैं। इनके योगदान की हर कोई सराहना करता है। आइए जानते हैं सिंधी कम्युनिटी के बारे में कुछ मजेदार चीजें। इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद हिंदू इंडिया आ रहे थे और मुस्लिम पाकिस्तान। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू मुस्लिम के बीच बेहद भाईचारा था, लेकिन बढ़ती असुरक्षा के कारण करीब 8 लाख सिंधी हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में शरण लेने का कड़ा फैसला लिया। पूरे इंडिया में आज 25 लाख से ज्यादा सिंधी हैं। भारत में सिंधियों की आबादी सबसे ज्यादा मुंबई के उल्लासनगर एरिया में है। सिंधी भाषा को भारत सरकार ने 1967 में 15वीं ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित की थी। ज्यादातर सिंधी हिंदू हैं, लेकिन कुछ सिंधी सिख धर्म के सिद्धांतों को भी मानते हैं। इन्हें सहजधारी कहते हैं। सिंधियों का न्यू ईयर यानी कि चेटी चंड सबसे बड़ा त्योहार होता है। ये त्योहार भगवान झूलेलाल के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्हें वरुण देव का अवतार मानते हैं। इस दिन सिंधी पानी को पूजते हैं। चेटी चंड के अलावा अक्षय तृतीया और तीजरी के अवसर पर भी काफी जश्न मनाए जाते हैं। ज्यादातर सिंधियों का सरनेम ANI से एंड होता है, जिसका अर्थ होता है वंशज। ये सरनेम्स मोस्टली पूर्वजों के नाम से जुड़े होते हैं, जैसे गिडुमल के फैमिली का गिडवानी, मेहरचंद का मेहरचंदानी। एक चीज ध्यान में रखने जैसी ये है कि कुछ सिंधी सरनेम्स JA से भी एंड होते हैं, जैसे आहूजा और राहेजा। भारत में सिंधियों ने लगभग हर फील्ड में नाम कमाया है, जैसे राम जेठमलानी, इंडिया के नंबर 1 लॉयर, पंकज अडवाणी, वर्ल्ड फेमस बिलियर्ड्स और स्नूकर प्लेयर, निरंजन और सुरेंद्र हिरानंदानी, रियल एस्टेट टाइकून्स, रणवीर सिंह भावनानी, बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक। अपने मातृभूमि की तड़प शायद कुछ सिंधियों को हुई होगी, बट उन्होंने कभी इस बात को बाधारूप नहीं बनने दिया। जब भारत में भाषा के आधार पर नए नए राज्य बनाए जा रहे थे, इन्होंने कभी अलग राज्य की मांग या जिद नहीं की। जहां भी गए सबके साथ घुल मिल गए। सभी सिंधियों को 1986 में शाबानो को 3 तलाक दिया उसका पति। वो कोर्ट में केस लड़ी, जीती, लेकिन वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी वो फट्टू बोला चुप बैठ औरत। कोर्ट का फैसला उल्टा कर दिया और शाबानो को मुल्लों के सामने फेंका। इस पे इसको हिंदुओं से बहुत गाली पड़ी और उनको खुश करने के लिए टीवी पे रामायण शुरू किया। हर संडे सुबह पूरा देश चिपक के टीवी देखता था। बिल्किस बानो रेप केस ने अब गुजरात की 2 रेमिशन पॉलिसीज के बारे में जानिए, 1992 वाली और 2014 वाली। तो 2014 की जो पॉलिसी है ना, वो क्लियरली ये कहती है कि किसी भी हालत में रेपिस्ट और मर्डरर्स को अर्ली रिलीज नहीं दिया जाएगा।
पर 1992 वाली जो पॉलिसी उसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। अब ये जो 11 लोग हैं उन्हें सजा कब मिली? 2008 में। तो इन पर 1992 वाली पॉलिसी अप्लाई होगी, मतलब जब सजा मिली तब जो पॉलिसी थी वो अप्लाई होगी। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि इन 11 लोगों को रिलीज करने से पहले क्या स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर से ओपिनियन लेना चाहिए था या नहीं? क्योंकि सीआरपीसी का सेक्शन 435 ये कहता है कि अगर कोई सेंट्रल एजेंसी जैसे सीबीआई अगर किसी में इन्वॉल्व हो तो स्टेट को सेंटर से ओपिनियन लेना चाहिए। करंट केस में ऐसा कहीं पता नहीं चल रहा है कि सेंटर से ओपिनियन लिया गया था या नहीं। आप बताइए, आपके हिसाब से रेपिस्ट और मर्डर को अर्ली रिलीज देना सही है या बहुत गलत? बताइए।